Hello and welcome back everyone. Here's your chapter number 5, heat and its effect. In this session we will discuss about heat, its effects and much more. So let's jump into it. Our first topic is heat. Do you know what is heat? Look, heat is a form of energy. In the beginning of 19th century, Count Rumford and James Prescott established that heat is a form of energy known as thermal energy. Okay, simply an invisible energy which causes the sensation of hot and cold is known as heat. एक इनविजिबल एनर्जी जिसके कारण हम हॉट और कोल्ड फील करते हैं, दैट इज नोन एज हीट. The SI unit of heat is joule, but commonly used unit is calorie, and the bigger unit of heat is kilocalorie. Okay. One more thing, heat always transfer from hot object to cold object. जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है तब तक हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होती रहती है. नाउ इफेक्ट्स ऑफ हीट. when we supply heat to an object, various types of physical and chemical change take place. Physical change, heat causes increase in temperature or decrease in temperature. It causes change of an state of an object. It causes thermal expansion and also it causes chemical change. First, how heat affect the temperature. When we supply heat on an object, its temperature increase, and on removal of heat from the body its temperature decrease. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और जब हम उसमें से हीट सप्लाई करना बंद कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. नाउ चेंज ऑफ स्टेट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर को हीट सप्लाई करते हैं तो वाटर की लिक्विड स्टेट से वह गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. बट जब हम उसे बॉयल करना स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, लाइक एज हम उसे हीट सप्लाई नहीं करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म से, इफ़ हम उसके ऊपर, अगर हमने एक प्लेट रखी हुई है, अदर थिंग हम उसके ऊपर रखते हैं तो उस पर जो गैसियस फॉर्म होती है वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है. थर्मल एक्सपेंशन, द फिनोमिना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर. इट मीन्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट सप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. वॉल्यूम इंक्रीज होते ही वो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होती है, उसकी शेप होती है, वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाती है. तो इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज नॉन एज एक्सपेंशन. इट ऑल्सो कॉजेज केमिकल चेंज. व्हेन वी हीट सम रिएक्टेंट्स, many chemical changes take place. Heat energy. Many other forms of energy can be converted to heat energy, and heat energy can be converted to other forms of energy. For example, when you rub your hands together, mechanical energy gets converted to heat energy and your hands become warm. When fuel is burned, chemical energy stored in the fuel gets converted to heat energy. In an electrical heater, electrical energy is converted to heat energy. So when we supply heat to solid, liquid and gases, its molecules gain energy and start moving faster. The more we heat the substance, the faster its molecules move. So we can say that heat energy is the energy of movement of molecules. Thermal expansion. We have already studied about thermal expansion, that the process of expansion of a substance on heating is known as thermal expansion. Now we will discuss about expansion in detail one by one. So first, expansion in solid. We will understand it by an experiment. To do it, we take a ring and ball apparatus as you can see on the screen. जब हम
नॉर्मली रिंग से कोल्ड मेटल बॉल को रूम टेम्परेचर पर पास कराते हैं तो रिंग से बॉल इजीली पास हो जाती है, बट जब हम इसे हीट सप्लाई कर देते हैं, हीट सप्लाई करने पर बॉल एक्सपेंड हो जाती है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो ये रिंग से पास नहीं हो पाती है. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग. ओके, नाउ एक्सपेंशन इन लिक्विड. वी टेक अ थर्मामीटर. एक्सपेंशन इन सॉलिड को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक थर्मामीटर को लेते हैं. वी नो दैट थर्मामीटर हैज़ मरकरी. थर्मामीटर में मरकरी होती है. नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम उसे रखते हैं तो उसमें मरकरी बल्ब में फिल रहती है. थर्मामीटर के बल्ब में मरकरी फिल रहती है नॉर्मल टेम्परेचर पर, बट जब हम उसे हीट सप्लाई कर देते हैं, हीट सप्लाई करने के बाद मरकरी बल्ब से थर्मोमीटर के स्टैम्प में एक्सपेंड हो जाती है. ठीक है, हीट सप्लाई करने के बाद ये एक्सपेंड हो जाती है. सो दिस शोज दैट लिक्विड ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग. नाउ एक्सपेंशन इन गैसेज. टू नो अबाउट इट, वी टेक अ बोटल, balloon, a jar with a beaker with a water and a burner. Okay, सो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जब हम इसको रखते हैं तो हम देखते हैं कि बलून में एयर फिल नहीं होती है, बट जब हम इसे एयर सप्लाई करना, हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक बर्नर को जला देते हैं. ठीक है, बर्नर से हीट लिक्विड में जाती है वाटर से, और वाटर से हीट बॉटल में सप्लाई होती है. ठीक है, जैसे बॉटल में हीट जाती है तो बॉटल के अंदर जो एयर होती है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है, और एक्सपेंड होने के कारण बलून फिल हो जाता है, बलून में एयर चली जाती है, और बलून दोनों पिक्चर के बीच में आप डिफरेंस नॉर्मली स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पहले जब हम रूम टेम्परेचर पर हमने इसको रखा हुआ है तो बलून की पोजीशन कैसी है, और जब हम बर्नर को ऑन कर देते हैं तो एयर एक्सपेंड होती है और बलून की क्या पोजीशन हो जाती है. सो दिस ऑल्सो शोज दैट एयर ऑल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग. हियर यू कैन ईजीली सी द डिफरेंस बिटवीन solid, liquid and gases on heating. The particles are not in solids, the particles are not free to move, so solids do not expand much. Okay, in liquids the particles move more freely than in solids, so liquids usually expand more than solids. Now gases, the particles as far apart and move more freely than in liquids or solids. Gases usually expand more than liquid. There are some condition in expansion is useful, and there are some condition in which expansion causes problem. So like as metal caps or glass bottles can be loosened by pouring hot water over the metal cap. ओके, जो मेटल कैप्स होती है ग्लास बोटल्स की वो लूज़ हो जाती हैं जब हम उस पर हॉट वाटर, मेटल कैप पर हॉट वाटर डाल देते हैं. हॉट वाटर डालने से क्या होता है, वो थोड़ा एक्सपेंड हो जाते हैं और हम इजीली उसे खोल सकते हैं. ठीक है, समर सीज़न में जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं, दो पोल्स के बीच में जो केबल्स होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती है और उनके बीच में एक सैग आ जाता है, इट मीन्स वो झुक जाती हैं. लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है, क्योंकि हीट कम हो जाती है, हीटिंग कम होगी तो वो क्या होंगी, कॉन्टैक्ट हो जाएंगी, और कॉन्टैक्ट होने के कारण वो फिर से टाइट हो जाती है. इसलिए उनके बीच में थोड़ा सा जब उन्हें पोल से बांधा जाता है तो थोड़ा उनके बीच लूज़ रखा जाता है उन्हें. अगर लूज़ नहीं रखते हैं तो क्या होगा, वो कॉन्टैक्ट विंटर सीजन में कॉन्टैक्ट होंगी, और कॉन्टैक्ट होने के कारण वो टाइट होंगी, और अगर उनमें बीच में गैप नहीं उन्हें लूज़ नहीं करेंगे तो वो टूट जाएंगी. ऐसे ही जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स के बीच में थोड़ा गैप रखा जाता है. जब रेल्स बिछाई जाती हैं उनके बीच में थोड़ा गैप रखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन के कारण उनके बीच में गैप रखा जाता है. क्योंकि जब हीटिंग होती है, समर सीज़न में बहुत हीटिंग होती है, तो हीटिंग के कारण वो एक्सपेंड होते हैं. बट अगर हम उनके बीच में एक्सपेंशन नहीं रखते हैं, एक्सपेंशन गैप नहीं छोड़ते हैं, तो उसमें बैंड आ जाएगा, और बैंड आने के कारण रेलवे ट्रैक्स में रेल्स एक्सीडेंट हो सकता है. So students, I hope you enjoyed this session. We will study about temperature and different types of thermometer in another session. Bye bye, happy learning.